We have to study about the control arrangement of a DC motor. So here we'll be studying about the closed loop control of DC drives. So when we talk about the control of a DC motor, we have two types of controls. We have a two loop control and we have a three loop control. In a two loop control, हमारे पास जो दो loops बनते हैं, so we have two loops. The inner loop is a current control loop, and the outer loop is a speed control loop. And when we're talking about three loop control, there will be three loops. The first two loops, they will be the same as in two loop control. The first one will be the inner current loop, the inner current control loop, and there will be a outer loop, speed control loop, and apart from that, there will be an outermost loop that will be your position control loop. We can also use a single loop जिसमें आपके पास सिर्फ होगा speed control loop, but the problem with your speed control loop जहाँ पर अगर आप single loops में ही काम कर रहे हो, you are only concerned with the speed, आप current control loop employ नहीं करते हो. तो यहाँ पर क्या होता है, there will be a lot of torque pulsations क्योंकि जो आपका torque है that depends upon current. So if you don't take current into considerations, तो जो आपका ड्राइव होगा उसमें क्या होगा, there will be a lot of torque pulsations. So due to these torque pulsations, जो आपका speed response होगा that won't be accurate. तो जो हमारे feedback loops होते हैं in an electric drive, वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? They are provided to give us one protection. Second is enhancement of speed of response. And the third is to improve steady state accuracy. तो जिसका second point है जो हमारा feedback loop है, it enhances the speed of response. So if you go for a single loop जिसमें आप सिर्फ speed control जिसमें आपके पास सिर्फ एक speed control loop है, current control loop आप employ नहीं कर, तो वहाँ पर torque pulsations आएंगे, and due to the torque pulsations जो हमारा speed response होगा that won't be that accurate and it won't be that efficient. तो अगर हम एक अच्छा कंट्रोल अचीव करना है, इफ यू वांट अ बेटर एक्यूरेसी, सो वी गो फॉर टू लूप कंट्रोल और वी गो फॉर द थ्री लूप कंट्रोल. तो सबसे पहले हम देखेंगे टू लूप कंट्रोल. इसमें जो सबसे पहला लूप है दैट इज द इनर करंट लूप कंट्रोल. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक रेफरेंस करंट है, and that reference current is compared with the measured value. तो रेफरेंस करंट को एक मेजर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो. यहाँ पर एक करंट एरर हमारा जनरेट होगा, so this will be a current based error. So here we will be having a current based error. Now this error will be fed to a controller, और ये जो कंट्रोलर होगा this will provide the firing pulses to the thyristor based rectifier, so that जो हम चाहते हैं जो रेफरेंस करंट, वही करंट हमें यहाँ आउटपुट पे मिले. तो हमारे पास एक रेफरेंस करंट होगी, उसको मेजर्ड वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे, एंड दैट एरर विल बी फेड टू अ कंट्रोलर, एंड दैट कंट्रोलर इट विल इशू फायरिंग पल्सेस टू द थायरिस्टर बेस्ड रेक्टिफायर. जो इनपुट है ऑफ दिस रेक्टिफायर दैट इज एसी, इट कैन बी अ सिंगल फेज एसी, इट कैन बी थ्री फेज एसी. सो यू कैन हैव अ फुल वेव रेक्टिफायर, यू कैन हैव अ हाफ वेव रेक्टिफायर. सो इसका आउटपुट आपको मिलेगा, एंड दैट जो आपको यहाँ से नेसेसरी वोल्टेज मिलेगी, एंड दैट वोल्टेज विल बी गिवन टू द आर्मेचर टर्मिनल्स ऑफ दिस मोटर. अब जो यहाँ से हमारी ये आर्मेचर करंट है दैट विल बी सेंस्ड यूजिंग ए करंट सेंसर, and then will again be compared with the reference value once again, and if अगर error है तो an error will be generated to be given to a controller, and similarly आपकी firing pulses issue हो जाएंगे.
ये तो था हमारा अबाउट द इनर लूप. देन वी हैव द आउटर लूप, दैट इज योर स्पीड कंट्रोल लूप. इसमें हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड होगी, सो लेट मी ड्रॉ द टू लूप कंट्रोल. दिस विल बी योर इनर लूप, और इसके अलावा एक आउटर लूप होगा जो होगा आपका स्पीड कंट्रोल लूप. तो दिस इज योर रेफरेंस वैल्यू ऑफ स्पीड, जो हम स्पीड चाहते हैं, एंगुलर स्पीड जो भी हमारे हम चाहते हैं, तो दिस विल बी द रेफरेंस. यहाँ पर हमारे पास होगा द मेजर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड. इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से एक स्पीड एरर हमारा जनरेट होगा. सो दिस एरर विल बी ए स्पीड बेस्ड एरर. so this will be a speed based error. ये जो आपका एरर होगा, दिस विल अगेन बी गिवन टू ए कंट्रोलर. और ये जो आपका कंट्रोलर है, ये प्रोड्यूस करेगा नेसेसरी करंट. तो है यहाँ पर एक और, यहाँ पे कंट्रोलर लगा होगा. द shaft of the motor. तो यूजिंग ए स्पीड सेंसर, ये स्पीड सेंसर आपका टेको जनरेटर हो सकता है. तो यहाँ पर एक स्पीड सेंसर होगा जो सेंस करेगा स्पीड ऑफ आवर ड्राइव. हियर यू हैव अ स्पीड सेंसर. दिस इज योर टू लूप कंट्रोल. ये जो इनर लूप है, दिस इज द इनर लूप, एंड हियर यू हैव योर आउटर लूप. आउटर लूप जो है यहाँ पर आपका स्पीड कंट्रोल लूप है. इनर लूप आपका करंट कंट्रोल लूप है. इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड है, ये जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड है, दिस विल टेल अस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ करंट टू मेंटेन दिस स्पीड. इसमें क्या हो रहा है, आपका एक आप देख रहे हो कि आपका जो मोटर है जो ऑलरेडी रनिंग है, इसकी हम स्पीड सेंस करते हैं. इसको एक जो आपके मेजर्ड वैल्यू, उसको रेफरेंस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं. हियर यू विल गेट अ स्पीड बेस्ड एरर. दैट एरर इज फेड टू ए कंट्रोलर. तो जो हमें स्पीड चाहिए, उसके लिए जो नेसेसरी हमारी करंट है, ये वो करंट जनरेट करेगा, ये आपकी रेफरेंस करंट होगी. और जो यहाँ पर आपकी मेजर्ड वैल्यू है, ये दोनों कंपेयर होंगे. यहाँ से करंट बेस्ड एरर मिलेगा जो हमें कंट्रोलर को फीड करेंगे, और ये कंट्रोलर वो फायरिंग पल्सेस इशू करेगा टू द थायरिस्टर, सो दैट ये ऐसी फायरिंग पल्सेस अचीव करेगा जिससे हमें ये डिजायर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड मिल जाए. तो सच ए कंट्रोल इज कॉल्ड योर टू लूप कंट्रोल. दिस इज योर टू लूप कंट्रोल. जो ये आपका टू लूप कंट्रोल है, दिस इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. तो इसमें क्या है, आपका एक इनर
करंट कंट्रोल लूप है और एक आउटर स्पीड कंट्रोल लूप है। जो इनर आपका ये करंट कंट्रोल लूप है, इसमें एक फीचर दिया जाता है जिसमें हम लिमिट करते हैं कन्वर्टर और मोटर करंट को, मोटर टॉर्क को बिलो सेफ लिमिट, जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो जो आपका ये टू लूप कंट्रोल है, इसमें हम क्या करते हैं, हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम करंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, सो वी कैन से कि हम टॉर्क को भी कंट्रोल करते हैं। बाय कंट्रोलिंग द आर्मेचर करंट, हम जो हमारा टॉर्क है डीसी मोटर, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज अ वेरी वाइडली यूज्ड कंट्रोल स्कीम इन इलेक्ट्रिकल drives. After this comes our थ्री लूप कंट्रोल। थ्री लूप कंट्रोल में क्या होगा, इसके अलावा एक और लूप होगा, देयर विल बी ए थर्ड लूप। तो नाउ लेट अस गो टू थ्री लूप कंट्रोल। उसमें ऑलरेडी एक तो ये जो हमारा टू लूप कंट्रोल है, ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा एक और लूप होगा। नाउ यहाँ पर हमारा ये जो थर्ड आपका लूप होगा, दिस विल बी योर पोजिशन लूप। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास फिर से जो भी हमारी जो डिजायर्ड पोजीशन है हमारी, वो रेफरेंस वैल्यू हम यहाँ पर देंगे। दिस इज योर थीटा रेफरेंस, और यहाँ पर है आपका मेजर्ड वैल्यू, द पोजीशन ऑफ शैफ्ट, ये आपको दे देगा एक, यहाँ पर एक पोजीशन एनकोडर होगा जो कि बताएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द shaft. Here you will have a position encoder. और यहाँ पे आपको मिलेगा the measured value of position. So this is your theta measured. Where you will have a position based error. यहाँ पर आपका एक कंट्रोलर होगा, connected here. तो ये आपका आउटर मोस्ट लूप है। Here you have your outermost loop. तो सबसे पहले हमारा आ रहा है इनर लूप, जहाँ पर we control the current, then there is a outer loop जिसको जो हमारा एक स्पीड कंट्रोल लूप है, एंड देन देयर इज अ आउटरमोस्ट लूप जहाँ पर हम पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। तो जो आपका ये इनर और आउटर लूप है, ये क्या करते हैं, दे रिस्ट्रिक्ट द करंट एंड स्पीड विद इन सेफ लिमिट्स। आप अपनी करंट को कंट्रोल करते हो, आप स्पीड को कंट्रोल करते हो। वी एनहेंस द स्पीड ऑफ response, we reduce the effects of non-linearities in the converter, motor and load.
तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर एक पोजीशन कोडर है, ये मेजर करते हैं पोजीशन ऑफ द shaft of the DC motor, and this is compared with the reference value of position of rotor shaft. जो कंट्रोलर होता है, ये जो कंट्रोलर अब होगा, this gives us the desired reference speed for maintaining this position. और ये जो हमारी डिजायर्ड रेफरेंस स्पीड है, जब इसको हम इस मेजर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमें वो वी गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट, जिससे हमें ये डिजायर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड मिलेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो आपका कंट्रोलर है, ये हमें एक डिजायर्ड रेफरेंस स्पीड देता है, जिससे हम ये पोजीशन मेंटेन कर पाएंगे। तो ये वाला कंट्रोलर है, ये हमें एक डिजायर्ड रेफरेंस करंट देता है, जिससे ये हमारी स्पीड हमारी मेंटेन रहेगी। और ये कंट्रोलर वो फायरिंग पल्सेस इशू करता है, जिससे हमारी ये करंट हमें मिलेगी, जिससे हमें ये वाली स्पीड मिलेगी, और जिससे स्पीड से हमें ये पोजीशन मिल जाएगी। So such a kind of control is called your three loop control. Three loop control. तो सपोज आपको अगर यू वांट योर पोजीशन, आपको एक स्पेसिफिक जगह पे आपको अपनी रोटर शाफ्ट की पोजीशन चाहिए, तो इन थ्री लूप कंट्रोल वी आर नॉट टेलिंग अवर मोटर कि क्या हमें स्पीड मेंटेन करनी है, बट यहाँ पर हम कंसर्न है विद द पोजीशन ऑफ द रोड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी ये पोजीशन है, ये खुद ही इसमें ये जो आपका ये कंट्रोलर है, ये इट विल फीड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस वैल्यू ऑफ स्पीड एंड करंट, जिससे हमें मिल जाएगी द रिक्वायर्ड पोजीशन। सो इफ यू वांट आवर पोजीशन एट 120 डिग्रीज, सो उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्पीड है, वो हमें वो रिक्वायर्ड स्पीड मिल जाएगी। स्पीड को मेंटेन करने के लिए वो रिक्वायर्ड रेफरेंस करंट मिलेगी। फायरिंग पल्सेस इशू होंगी थ्रू दिस थायरिस्टर बेस्ड रेक्टिफायर। उसी हिसाब से एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज आपको मिलेगी। तो आपका रोटर एक्सेलरेट करेगा, उस पोजीशन पे पहुंचेगा और स्टॉप हो जाएगा उस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर हमें रोटर को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना होता है। सपोज अगर आप जो स्पेस स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर जो सैटेलाइट्स होती हैं, तो वहाँ पर पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो सैटेलाइट आपकी होनी चाहिए ऑलवेज ओरिएंटेड एट 120 डिग्रीज। तो सपोज दैट सैटेलाइट, अब आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है, आपने उस पोजीशन को अब रख दिया है एट 125 डिग्रीज। तो आप यहाँ पर अपनी रेफरेंस करोगे 125 डिग्रीज। अभी आपका मेजर्ड कितना है, 120 डिग्रीज। तो जो आपको नई पोजीशन चाहिए दैट इज 125 डिग्रीज। तो यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा, उस एरर की वजह से एक स्पीड जनरेट होगी कि कितना हमारा जो रोटर है वो उसमें उसमें कितनी हमें एडिशनल स्पीड चाहिए ताकि हम इस पोजीशन पे आएंगे। उस स्पीड के लिए जो नेसेसरी करंट्स हैं, वो करंट्स प्रोड्यूस होंगी। करंट की वजह से एक हमारे सिस्टम में टॉर्क आएगा। टॉर्क क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हमारा जो रोटर है वो एक्सेलरेट करेगा एंड यू विल गेट टू दिस न्यू न्यू पोजीशन, डिजायर्ड पोजीशन ऑफ 125 डिग्रीज। वहां पर हमारा ये वी कैन यूज दिस थ्री लूप कंट्रोल। तो जैसे ही हमें हमारी डिजायर्ड पोजीशन मिल जाएगी, तो अब जो आपका रोटर है उसको वो रोटेट करने की अब ज़रूरत नहीं है। हमें जो स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए थी, वो स्पेसिफिक पोजीशन हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। सो दिस इज योर थ्री लूप कंट्रोल। इससे पहले जो हमने स्टडी किया दैट वाज योर टू लूप कंट्रोल। कैन ऑल्सो गो फॉर सिंगल लूप कंट्रोल, बट सिंगल लूप कंट्रोल जो होगा वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा, वो उतनी आपके जो ड्राइव है उसको उतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नाउ देयर आर सर्टन कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी होती हैं। सो देयर आर सर्टन considerations that we have to keep in mind while going for this two loop control and three loop control. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला
देखिए ये जो हम कंट्रोल अरेंजमेंट जो है हमारी इसकी, वी डू दिस फॉर थ्री मेन रीजंस। वन, हम चाहते हैं जो हमारी ड्राइव है इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं ये कंट्रोल। सेकंड, एनहेंसमेंट ऑफ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। थर्ड, टू improve steady state accuracy। ये तीन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कंसिडरेशंस में नहीं आ रहा है। तो जो हमारा ये क्लोज लूप जो हम कंट्रोल जो फीडबैक लूप्स हम यूज कर रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक, प्रोटेक्शन। सेकंड, एनहेंसमेंट ऑफ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। थर्ड, टू इम्प्रूव स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी। सो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स जो हमें पूरे करने हैं, ये तीनों चीजें हमें अचीव करनी है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन कंसिडरेशन। सो द फर्स्ट कंसिडरेशन इज योर स्पीड रेंज। दिस इज द फर्स्ट कंसिडरेशन। तो जब भी हम किसी भी कंट्रोल अरेंजमेंट में जाते हैं तो हमें ये जो स्पीड रेंज है हमारी, उसे हमें माइंड में रखना है वाइल डिजाइनिंग द कंट्रोलर। सो सपोज कि आप आप एक मोटर को रन कराना चाह रहे हो। सो जो आपकी जिस स्पीड पे आप उसको चलाना चाहते हो, तो वहां पर एक रेंज होगी। तो हमें उस रेंज को, वी हैव टू कीप दैट रेंज इन माइंड कि जो हमारा कंट्रोलर है वो जो भी हम चाह रहे हैं अपने मोटर से, कि क्या वो हमें वो सब चीजें अचीव करके दे रहा है विद इन दिस स्पीड रेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप चाह रहे हो कि आपकी जो मोटर है, आप उसकी स्पीड हो -200 रेडियन पर सेकेंड टू +200 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे नेगेटिव स्पीड, पॉजिटिव स्पीड, तो बेसिकली आप क्या चाह रहे हो? यू वांट है, आप यहाँ पर दो क्वाड्रेंट्स में काम करना चाहते हो। दिस इज टॉर्क, दिस इज let me redraw this। दिस इज टॉर्क, दिस इज स्पीड। तो आप दो क्वाड्रेंट्स में ऐसे काम करना चाहते हो। तो जब आप एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हो या इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो हमारा कंट्रोलर है वो ये टू क्वाड्रेंट जो ऑपरेशन है इसको अचीव करे विद इन दिस स्पीड रेंज। कि जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो या यहाँ से इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, आपकी जो स्पीड हो वो इस रेंज के बीच में रहे। तो अगर ये आपकी स्पीड है तो दिस इज योर अपर लिमिट, इसके ऊपर आपकी स्पीड नहीं जानी चाहिए 200 रेडियन पर सेकेंड के। और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करो तो -200 रेडियंस पर सेकेंड के भी नीचे आपकी स्पीड नहीं जानी चाहिए। सो अकॉर्डिंगली, जैसे आप हमने देखा था कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर से जो टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन हमें अचीव करके देते हैं। तो जब आप यहाँ पर जा रहे हो फॉर टू लूप कंट्रोल, तो वहां पर क्या होना चाहिए? जो आपकी स्पीड रेंज है वो हमेशा क्या होना चाहिए? योर स्पीड शुड रिमेन विद इन लिमिट्स। तभी जाके जो हमारी ये जो है विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर ड्राइव। सेकेंड थिंग इज योर acceleration rate and braking rate। Acceleration rate and braking rate। तो ये जो हमारा स्पीड कंट्रोल है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट
लूप था। ये जो हमारा थ्री लूप कंट्रोल है, इसमें जो हमारा आउटर मोस्ट लूप है, यहाँ पर क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब जो हमारा सेकेंड लूप है, तो सेकेंड लूप जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ स्पीड, एंड स्पीड क्या होता है आपका, डी थीटा बाई डी टी। और जो आपका थर्ड लूप है, दैट इज द इनर लूप। तो जो आपका ये थर्ड लूप है, ये क्या कर रहा है, यू आर कंट्रोलिंग द करंट बट इनडायरेक्टली यू आर कंट्रोलिंग द टॉर्क। और टॉर्क क्या है आपका, डी, योर टॉर्क इज डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। तो इस लूप से आप थीटा को कंट्रोल कर रहे हो, इस वाले लूप में आपका डी थीटा बाई डी टी, और इस वाले लूप से आपका जो टॉर्क है, आपका जो जो आप टॉर्क है, टॉर्क को कंट्रोल कर रहे हो। और टॉर्क क्या है, बेसिकली आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जितना ज्यादा टॉर्क होगा, उतनी जल्दी आप अपनी डिजायर्ड स्पीड पे आ जाओगे। तो सपोज के यू वांट योर रोटर टू रोटेट एट, अगर हम अभी मैं आपको यहाँ पर ये ले रहा हूँ कि जो आपका रोटर है, आप चाहते हो कि दैट शुड रोटेट एट 1200 आरपीएम। तो इस 1200 आरपीएम पे इसको रोटेट कराने के लिए आपने कुछ रेफरेंस करंट जनरेट की, सो दैट रेफरेंस करंट इज 5 एम्पियर। तो उस 5 एम्पियर पे कुछ आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो टॉर्क, देखो टॉर्क अब जितना ज्यादा होगा, उतनी जल्दी आप, जो आप जिस स्पीड पे आप रोटर को, आपकी करंटली जो आपका रोटर है, दैट इज रोटेटिंग एट 1100 आरपीएम। ठीक है। अभी जो आपका रोटर है, वो एक्चुअली 1100 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, बट आप चाहते हो कि वो रोटेट करे एट 1200 आरपीएम। तो जब ये दो आपकी स्पीड्स कंपेयर होंगी, यहाँ से एक एरर जनरेट होगा, तो कंट्रोलर उसी हिसाब से एक रेफरेंस करंट प्रोड्यूस करेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस करंट एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो सपोज करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बहुत टॉर्क प्रोड्यूस करो, तो टॉर्क जितना ज्यादा होगा, उतनी जल्दी आप क्या करोगे, यू विल एक्सेलरेट टू दिस स्पीड, और आप उतनी जल्दी स्पीड तक पहुंच जाओगे। बट ये जो टॉर्क है, हमें ये देखना है कि ये टॉर्क इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि दिस बिकम्स हार्मफुल टू आवर ड्राइव। सो वी हैव टू कीप इन माइंड द एक्सेलरेशन रेट। ये एक्सेलरेशन रेट इतनी ज्यादा भी ना हो कि ये हमारी ड्राइव को ये हमारी ड्राइव के लिए डेंजरस हो। इसका आप ऐसा एग्जांपल समझो, सपोज यू आर वेटिंग एट अ ट्रेन स्टेशन। स्पीड, जो वो ट्रेन है, आप एक ट्रेन में चढ़ना चाहते हो, और वो ट्रेन चल रही है एट ए स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स। तो आप अब आप ट्रेन स्टेशन पे वेट कर रहे हो, ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है, कोई आदमी उस ट्रेन में से निकलता है, और आपको एट एट दैट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स आपको अचानक से पकड़ लेगा और ट्रेन में बिठाने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो जो ट्रेन है, वो बहुत ही हाई स्पीड पे चल रही है, आप स्टेशनरी हो, तो अचानक से एक इतना ज़्यादा फोर्स आएगा, तो आपकी वो बाजू ही निकाल देगा। तो सेम चीज़, ऐसा ना हो कि इतना टॉर्क प्रोड्यूस हो कि आपके रोटर पे इतना फोर्स आ जाए कि आपका रोटर ही डैमेज हो जाए। तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, वी वांट क्विक एक्सेलरेशन, बट इतनी भी ज़्यादा एक्सेलरेशन ना हो दैट इट डैमेजेस आवर रोटर। सो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू सी, हमें इसमें हमारे पास हमें प्रोटेक्शन यूज़ करनी है, सो दैट ये जो आपकी एक्सेलरेशन रेट है, ये इतनी ज़्यादा ना हो। सो सेम थिंग है विद डिसेलरेशन रेट। तो जब आप डिसेलरेट कर रहे हो, अब आपको आपकी स्पीड 1200 थी, आपकी स्पीड 1200 थी, और बट वी वांट ए स्पीड ऑफ 1100 आरपीएम, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारी रेफरेंस करंट जनरेट होती है, तो एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो हमारे रोटर को ब्रेक करे।
तो हमें यहाँ पर ये ब्रेकिंग जो रेट है उसे भी देखना है कि वो ब्रेकिंग रेट इतनी ज़्यादा ना हो दैट इट विल डैमेज अवर ड्राइव. The fourth consideration is your current stability. तो हम एक ऐसा कंट्रोलर वी वांट टू डिजाइन सच ए कंट्रोलर जिसमें क्या हो, आपका राइज टाइम सेटलिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम हो, स्टेडी स्टेट एरर जो है हमारा वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए. बट वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर क्या हो, जो आपकी करंट है दैट शुड बी विद इन स्टेडी स्टेट लिमिट्स. अगर आपका जैसे जो हमारी ड्राइव का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ड्राइव इज आवर मोटर. तो मोटर के ऊपर इसके रेटेड वैल्यूज दिए होते हैं, तो वहां पर आपको एक रेटेड करंट दी होगी. So it is very dangerous if you operate a motor above the rated current. So suppose there is a rotor जहाँ पर इसकी rated current है 10 ampere. So we should not go above this current. Now you want a speed of, जैसे हमने यहाँ पर लिया था, आपको स्पीड चाहिए 1200 आरपीएम. अभी जो स्पीड है दैट इज 1100 आरपीएम. तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंट्रोलर कुछ रेफरेंस करंट प्रोड्यूस करेगा. तो अब क्या आप देख रहे हो कि आपको आप अपनी वो जो स्पीड है दैट 1200 आरपीएम स्पीड, आप वो स्पीड अचीव कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे जो आपकी करंट है वो करंट आपकी 11 एम्पेयर 12 एम्पेयर 13 एम्पेयर 15 एम्पेयर जा रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इट शुडंट बी दैट योर कंट्रोलर अचीव्स द डिजायर्ड स्पीड क्विकली. आपकी वो क्विकली आपने क्या, आपने बहुत ही जल्दी वो डिजायर्ड स्पीड अचीव कर ली, लेकिन वो इतनी क्विक, इतने कम टाइम में वो स्पीड अचीव करने के लिए जो आपकी करंट है वो डेंजरस लेवल पे चली जाती है. तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी करंट हो दैट शुड रिमेन विद इन योर लिमिट्स. तो जैसे आपकी करंट है वैसे ही सिमिलर थिंग, द फिफ्थ पॉइंट इज योर स्पीड स्टेबिलिटी. तो आपको कुछ एक इसमें भी, इसमें सेम चीज जस्ट लाइक करंट, हम क्या चाहते हैं कि जो स्पीड हो दैट शुड रिमेन विद इन सर्टेन लिमिट. जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फिल हो जाए, बट एट द सेम टाइम जो आपकी स्पीड हो वो इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द डेंजरस लिमिट्स. तो जैसे हमारी ये करंट स्टेबिलिटी है, करंट स्टेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अभी हमारा करंट सेंसर लगा है, इसके साथ एक देयर इज अ थ्रेशोल्ड लॉजिक सर्किट. यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी ए, जो आपका करंट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ. नाउ वी वांट कि हमारी जैसे स्पीड है, जो हमारी करंट है दैट शुड रिमेन विद इन लिमिट्स. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो करंट सेंसर है यहाँ आगे क्या होता है, देयर इज ए थ्रेशोल्ड लॉजिक सर्किट. So here you will have a threshold लॉजिक सर्किट. ये जो आपका थ्रेशोल्ड, जैसे आपका मैटलैब है, मैटलैब में आपने देखा होगा ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट्स, कुछ जगहों पे क्या होता है, देयर इज अ सैचुरेशन ब्लॉक. तो सैचुरेशन ब्लॉक जो हम यूज करते हैं उसका काम क्या होता है कि कभी भी करंट को या जो भी आपका पैरामीटर है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, इसको जो भी आपने लिमिट सेट की है, आपकी करंट आपकी स्पीड कभी भी उस लिमिट के बाहर नहीं जाएगी. तो अगर ये है आपकी, ऐसे आपकी करंट इंक्रीज हो रही है,
और ये जैसे अभी मैंने बोला आपकी रेटेड करंट है 10 एम्पियर, शुड नॉट ऑपरेट अबव 10 एम्पियर। तो ये थ्रेशोल्ड लॉजिक सर्किट क्या करेगा, ये कभी भी इस करंट को इस 10 एम्पियर के ऊपर नहीं जाने देगा। ये करंट बढ़ रही है, जैसे ही 10 एम्पियर के ऊपर करंट जाती है तो इसको लिमिट कर देगा। इसमें पूरा एक लॉजिक सर्किट लगा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी करंट है ये 10 एम्पियर पे लिमिट हो जाएगी। तो ये कभी भी करंट को इस मैक्सिमम वैल्यू के आगे नहीं जाने देगा। तो ये क्या इंश्योर करेगा कि जो आपकी टॉर्क है, जो आपकी करंट है, वो आपकी स्पीड है, वो सब क्या हो, दैट शुड रिमेन विद इन लिमिट्स। तो यहाँ पर आप ये करंट लिमिट कंट्रोल का यूज करते हो। इसमें आप एक थ्रेशोल्ड लॉजिक सर्किट यूज करते हो, तो सो एज लॉन्ग एज द करंट इज विद इन ए सेट मैक्सिमम वैल्यू, जो आपका ये फीडबैक लूप है, ये ऑपरेशन ऑफ द ड्राइव को नॉर्मली चलने देगा। लेकिन अगर ड्यूरिंग योर ऑपरेशन करंट इस मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ जाती है, तो ये जो आपका थ्रेशोल्ड और लॉजिक सर्किट है, ये क्या करेगा, इट विल बिकम एक्टिव और करंट को ये फोर्स कर देगा टू रिमेन बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट। और जैसे ही करंट आपकी, अगर आप करंट आपकी इससे कम चली जाती है, तो फिर से क्या हो जाएगा, अ, ये नॉर्मली आपकी ड्राइव को चलने देगा। इससे हमें वो करंट प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो सेम तो इसके अलावा वी ऑल्सो हैव योर IR compensation in the last consideration। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा जब हम ये when we are controlling our drive, उस टाइम पे क्या होते हैं, देयर आर पावर लॉसेस। जो हमारे पावर लॉसेस हैं, दे शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, सो वी शुड प्रोवाइड योर IR compensation। तो वहाँ पर क्या होंगे, कॉपर लॉसेस होंगे, देयर विल बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉसेस इन द कन्वर्टर्स, देयर विल बी लॉसेस, आपकी जो मोटर है उसमें लॉसेस हो रहे हैं। सो वी हैव टू कंसिडर दीज लॉसेस, तो वी हैव टू प्रोवाइड द नेसेसरी कंपनसेशन, जिसकी वजह से जो हमारी ये पूरा जो हमारा कंट्रोल है, जो हमारी पूरी ड्राइव है, इट शुड ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली। ये जो हमारा करंट कंट्रोल था, जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, करंट लिमिट कंट्रोल। यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे आपकी ये स्पीड है, दिस इज योर रेफरेंस स्पीड, इसको आप कंपेयर कर रहे हो विद योर मेजर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, यहाँ पर एक कंट्रोलर है, ये नेसेसरी रेफरेंस करंट प्रोड्यूस करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर भी एक सैचुरेशन ब्लॉक लगा सकते हो, जैसे आपका थ्रेशोल्ड एंड लॉजिक सर्किट था, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक सैचुरेशन ब्लॉक लगा लो। तो ये सैचुरेशन ब्लॉक क्या करेगा, करंट को कभी भी बियॉन्ड जो भी आपने इसमें लिमिट सेट किया है, उस लिमिट के आगे करंट को कभी भी जाने नहीं देगा। तो जो आपका ये कंट्रोलर है, इसको प्रोवाइड क्या करना है, इस कंट्रोलर को प्रोवाइड करना है एक रेफरेंस वैल्यू ऑफ करंट। सो आपकी, आप क्या देख रहे हो कि जो आपका नेसेसरी, आप जो स्पीड चाहते हो, आपकी करंट ऐसे चेंज हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, अगेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और ये आपका एक ट्रांजिएंट पीरियड आ रहा है बीच में। तो आपके देख लो कि करंट राइज कर रही है, आर्मेचर करंट जो है आपकी राइज कर रही है, बट हमने क्या किया, ड्यू टू द सैचुरेशन ब्लॉक, यहाँ पर आपका एक लिमिट आ जाएगा। और इस लिमिट की वजह से क्या होगा, जैसे आप क्या चाह रहे हो, यू वांट 4 क्वाड्रेंट,
ऑपरेशन। तो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या होता है, आपकी वोल्टेज जो होती है कैन बोथ बी पॉजिटिव नेगेटिव, सिमिलरली योर करंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, बीच में एक पीरियड है जहाँ पर आपकी करंट क्या हो रही है, फ्रॉम आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव से आपकी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो ये जो आपका सैचुरेशन, आपने अब अपनी स्पीड चेंज कर दी, आपने अपनी, आप चाहते हो कि आपकी स्पीड चेंज हो, तो एक कंट्रोलर क्या होगा, ये इसी हिसाब से एक रेफरेंस करंट आपकी जनरेट करेगा। क्योंकि यहाँ पर अब हमने करंट लिमिट कंट्रोल लगाया है, यहाँ पर एक सैचुरेशन ब्लॉक है, तो आपकी करंट राइज करेगी, बट ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, कभी भी आपकी करंट को जो आपके लिमिट्स हैं उससे बाहर जाने नहीं देगा। तो सेम थिंग अप्लाइज फॉर द पॉजिटिव रीजन एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर द नेगेटिव रीजन। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा राइज टाइम, सेटलिंग टाइम जो हो वो मिनिमम हो इन दिस ट्रांजिएंट एरिया। और ये जो आपके वैल्यूज आ रहे हैं, दे शुड नॉट बी सच दैट आप चाहते हो कि आपका राइज टाइम कम हो, सेटलिंग टाइम कम हो, ऐसा ना हो जाए कि वो आपका वो कम हो रहा है लेकिन जो टॉर्क है वो बियॉन्ड लिमिट जा रहा है। तो आपका जो है यहीं पर आपका करंट कंट्रोल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो हमने अभी कंट्रोल पढ़े हैं, टू लूप कंट्रोल, थ्री लूप कंट्रोल, करंट लिमिट कंट्रोल, ये सेम कंट्रोल जो है आपका, ये जब हम चॉपर पे ड्राइव पढ़ेंगे वहां पर भी ये सेम कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं। तो ये तो था आपका ड्राइव्स जिसमें हम करंट कंट्रोल अप्लाई करें। करंट कंट्रोल क्या देता है हमें, प्रोटेक्शन, कहीं आपका टॉर्क जो है इट शुड नॉट गो बियॉन्ड लिमिट्स, आपकी रेटेड करंट जो है वो आप रेटेड करंट से ऊपर कहीं ऑपरेट ना करो। देर आर ऑल्सो ड्राइव्स जहां पर आपका करंट कंट्रोल नहीं है, तो देर आर ड्राइव्स विदाउट करंट कंट्रोल। तो कुछ ड्राइव्स है जहां पर करंट कंट्रोल हम यूज नहीं करते, हमारे पास बस एक स्पीड कंट्रोल का लूप है। ये ऐसा कंट्रोल हम वैसी जगहों पे यूज करते हैं यहाँ पर आपका करंट सेंसर नहीं होगा, देयर यू विल बी हैविंग ए स्पीड सेंसर। टैको जनरेटर हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कुछ यहाँ वो ड्राइव्स देख रहे हैं जहाँ पर करंट कंट्रोल नहीं है। जब आपके पास करंट कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप जो आपका टॉर्क है, आपका टॉर्क पे कंट्रोल अब नहीं है, टॉर्क पे कंट्रोल नहीं है, आपका एक्सेलरेशन पे कंट्रोल नहीं है। ऐसी जो ऐसी ड्राइव्स हैं यहाँ पर क्या होती है, जो प्रोटेक्शन है दैट इज वेरी लो। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बस स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं, डिपेंड आपको स्पीड चाहिए तो नेसेसरी फायरिंग पल्सेस इशू हो जाएंगी, जिससे आपको आप ये स्पीड अचीव कर लोगे। तो ऐसा जो स्पीड, ऐसा जो आपका कंट्रोल होता है ये हम कहाँ पर यूज करते हैं, वेरी लो कॉस्ट ड्राइव्स। अब जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप इतने कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल के लिए नहीं, आपकी ड्राइव है मतलब उतना महंगा सिस्टम है नहीं, तो आप उसके लिए, क्योंकि देखो जितना आपका कॉम्प्लेक्स कंट्रोल होगा उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। सो अब जहाँ पर आपकी ड्राइव जो है इट इज़ अ वेरी लो कॉस्ट ड्राइव, तो वहाँ पर आप सिंपल सा एक कंट्रोल चाहते हो, यू डोंट वांट ए कॉम्प्लेक्स कंट्रोल, सो वहाँ पर आपके ड्राइव्स विदाउट करंट कंट्रोल यूज करते हो, इन केस ऑफ ड्राइव्स वेयर द कॉस्ट एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया।
इसमें भी अब क्या होता है, इसमें एक ऐसा नहीं है कि करंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि करंट बढ़ जाए और आपकी ड्राइव जल जाए। इसमें भी एक इनबिल्ट सिस्टम होता है जो मेक श्योर करता है कि करंट जो है आपका वो शुड नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। बट वो इतना अगर आप टूल ऑफ कंट्रोल की बात करो दैट इज मच इफेक्टिव। इसमें भी क्या होगा, फॉर करंट कंट्रोल देयर विल बी ए इनबिल्ट सिस्टम। एक इनबिल्ट सिस्टम होगा दैट विल मेक श्योर कि जो आपकी करंट है, देयर विल बी ए इनबिल्ट सिस्टम विच विल मेक श्योर कि जो आपका जो करंट रिस्पॉन्स है वो सैचुरेटेड हो। करंट रिस्पॉन्स is saturated, but it won't be as efficient as your टू लूप कंट्रोल जहाँ पर आपका करंट कंट्रोल होता था। तो इसमें क्या होगा, एक इनबिल्ट ही सिस्टम रखा होगा जिससे आपकी करंट बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स ना जाए। लेकिन जितना इफेक्टिव जो आपका करंट, जब आपका एक करंट कंट्रोल लूप होता है जहाँ पर आपका करंट कंट्रोल होता है, जितना इफेक्टिवली जो आपका स्पीड रिस्पॉन्स होगा, जितना अच्छा उनमें होगा, वो आपका इन ड्राइव्स में नहीं होगा। सेकेंड थिंग जो इसमें लिमिटेशन क्या होगी, पहले तो वी कांट कंट्रोल द एक्सेलरेशन क्योंकि हमारे पास करंट लूप है ही नहीं। सो वी वोंट बी एबल टू कंट्रोल एक्सेलरेशन क्योंकि करंट कंट्रोल जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। सेकेंड थिंग, ऐसी ड्राइव में क्या होगा, लो प्रोटेक्शन। अब आपने रखा हुआ है, इसमें एक इनबिल्ट सिस्टम है जिससे आपकी करंट बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स ना जाए, बट एज कम्पेयर टू द करंट जहाँ पर जो ड्राइव है जहाँ पर करंट कंट्रोल है, एज कम्पेयर टू दोज ड्राइव की जो प्रोटेक्शन है दैट इज वेरी लो। So this was your of control of control arrangement of a DC motor, जहाँ पर हमने देखा वेरियस टाइप्स ऑफ करंट कंट्रोल और वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल, टू लूप कंट्रोल, थ्री लूप कंट्रोल, वेरियस कंसिडरेशंस जो हमें वी हैव टू कीप इन माइंड। वी हैव टू कीप इन माइंड द स्पीड रेंज, एक्सेलरेशन रेट, ब्रेकिंग रेट, करंट स्टेबिलिटी, स्पीड स्टेबिलिटी, लॉसेस, जो आपकी ड्राइव्स होती हैं विदाउट करंट कंट्रोल वो कैसे ऑपरेट करती हैं, क्या उसमें क्यों हम यूज़ करते हैं, तो उसमें कैसे आप प्रोटेक्शन देते हो। तो टुडे विल स्टॉप है।